Good morning, students. Welcome in Social Science virtual class. How are you? I hope all of you will be fine. Dear students, today we will continue chapter 3 of history, that is ruling the countryside. Ruling the countryside means how Britishers ruled our rural area, village area. Countryside means rural area, village area. So how Britishers ruled our countryside. Students, in previous virtual class we have discussed British introduced three types of settlements to collect the taxes from the farmers. First was permanent settlement. In this system, tax was permanently fixed. It would not change in future. Zamindars were responsible to collect the taxes and to deposit the East India Company. Second was Mahalwadi system. Mahal means village. In Mahalwadi system means village headman was responsible to collect the taxes and to deposit the East India Company. And third was Rohitwadi system. In Rohitwadi system, British directly collect the taxes from the farmers. Rohit means farmers. Rohitwadi system means when taxes were directly collected from the farmers. Students, all was not well. All three systems were not good. Why? Because the taxes were very high. Farmers were unable to pay the taxes. When they were unable to pay the taxes, their land was taken from them. And when they took the loan from money lenders and failed to pay the taxes to money lender, then land was even taken by the money lenders. So all was not well. Three systems were not good. These three systems adversely affect the life of farmers. Students, today we are going to discuss crop for Europe. Now, British realized that the countryside could not only yield revenue, it could also grow the crops that यूरोप required. विलेजेस से सिर्फ टैक्स ही नहीं कलेक्ट किए जा सकते, बट villages can be used to grow the crops that Europe required. By the late 18th century, the company was trying its best to expand the cultivation of opium and indigo. In this century and a half that followed, the British pursued and forced the cultivator in various parts of India to produce other crops. अब ब्रिटिशर्स ने फार्मर्स को मोटिवेट किया कि वो किन क्रॉप्स को ग्रो करें. They forced to grow different crops in various parts of India like jute in Bengal. They encouraged the farmers of Bengal to grow the jute, tea in Assam, sugar cane in United Provinces, or we can say Uttar Pradesh. They encourage force the farmers of Uttar Pradesh to grow the sugar cane, wheat in Punjab, cotton in Maharashtra, and Punjab, and rice in Madras. So how was this done? How they motivated the farmers to grow the crops? Student, see two pictures are given in this. See two pictures. The first picture, picture 5 on left side, you can say it shows a kalamkari print created by weavers of Andhra Pradesh in India.
On the right side is a floral cotton print design and produced by the William Morris, a famous poet and artist of 9th century of British Britain. So two figures you can see on this. You can see one is shows the kalamkari painter and other floral design which was created designed by the British poet and artist. Student, in both these figures which color is mainly used? Rich blue color is used, or rich blue color was produced from a plant indigo. किससे बनता था ये ब्लू कलर स्टूडेंट्स? इंडिगो प्लांट से बनाया जाता था, और इट वाज मेनली प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, बट इंडिगो वाज मैन्युफैक्चर्ड इन ब्रिटेन और अदर कंट्रीज. For this, India was the biggest supplier of indigo in the world at that time. इंडिगो का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता था? हमारी कंट्री में. So why they demand for Indian indigo? Students, Indian indigo was mainly grown in tropics. Tropics means the countries which have high temperature, have bright sunshine. So indigo plant grow primarily in which areas? Tropical areas. By the 13th century, Indian indigo was being used by cloth manufactured in Italy, France, Britain in dye cloth. इंडिगो का मतलब होता है नील. आजकल भी हम कपड़ों को ये कलर लगाते हैं, वाइट कलर के कपड़ों को वॉशिंग के बाद उस पर इंडिगो में डिप किया जाता है ताकि वो ज़्यादा वाइट हो जाए, ज़्यादा ब्राइट. आपकी यूनिफॉर्म की जो वाइट शर्ट है, वॉशिंग के बाद उसे किस कलर में डिप किया जाता है? इंडिगो में, कि उसको ज़्यादा ब्राइट बनाया जा सके. इंडिगो प्लांट कहाँ ग्रो होता था? ट्रॉपिकल कंट्री में. और 13th सेंचुरी में मेनली दिस कलर वाज यूज टू कलर दी make the designs in which country? Italy, France, Britain to dye the cloth. Only small amount of Indian indigo Europe reached the European market and its price was very high. जब भी किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है तो उसकी प्राइस ज़्यादा हो जाती है. तो यूरोप में बहुत कम अमाउंट में इंडिगो पहुंचता था, जिसके कारण वहाँ प्राइस ज़्यादा थी. That's why European cloth manufacturers therefore had to depend on another plant called woad to make violet and blue dyes. इसलिए जब महंगा था तो यूरोपियन क्लॉथ मैन्युफैक्चरर्स थे वो वोड का यूज़ करने लगे. किस चीज़ के लिए? कपड़ों को डाई करने के लिए. बट बीइंग अ प्लांट ऑफ टेम्परेट जोन, वोड वाज मोर इजली अवेलेबल इन यूरोप. जैसे इंडिगो ट्रॉपिकल कंट्रीज में ज़्यादा होता है, इसी तरह से वोड जो है टेम्परेट जोन में ज़्यादा ग्रो होता है और इजली अवेलेबल था, इसलिए उसकी प्राइस कम थी. इट वॉज ग्रोन इन नॉर्दर्न इटली, साउदर्न फ्रांस एंड पार्ट्स ऑफ जर्मनी एंड ब्रिटेन. Worried by the competition from indigo, wood producers in Europe pressurized their government to ban the import of indigo. क्योंकि इंडिगो के जो कलर था वो बहुत ब्राइट होता था, बेटर कलर था, पर जो वोड का कलर था उसका ज़्यादा बढ़िया कलर वो नहीं था. ब्लू कलर तो था बट जो रिच ब्लू कलर था वो नहीं था. तो वहाँ के मैन्युफैक्चरर्स ने कहा कि आप इंडिगो के इंपोर्ट को बंद कर दें, क्योंकि जब इंडिगो से डाई ही नहीं होगा तो उनके जो कपड़े वोड से डाई होंगे उनकी डिमांड ज़्यादा होगी. क्लॉथ डायर्स प्रेफर्ड इंडिगो एज अ डाई. इंडिगो प्रोड्यूस अ रिच ब्लू कलर whereas dye from wood was pale and dull. By the 17th century, European cloth produces their government to relax the ban on indigo import. पर क्लॉथ डायर्स ने कहा कि वो कलर रिच होता था
तो उसको थोड़ा इंपोर्ट उसको भी किया जाए। तो गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया कि परमिशन दी जाए कि हम इंडिगो को भी इंपोर्ट कर पाएँ। द फ्रेंच बिगेन कल्टिवेटिंग इंडिगो इन Caribbean Sea, Portuguese in Brazil, English in Jamaica, and Spanish in Venezuela. They started growing indigo in their countries. Indigo plantation also came up in many parts of North America. By the end of 18th century, the demand for indigo ग्रू फर्दर। अब 18th सेंचुरी के एंड में इंडिगो की डिमांड इंक्रीज हो गई। क्यों? बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन ब्रिटेन। सो व्हाट वाज हैपन? डिमांड इंक्रीज बट सप्लाई ऑफ इंडिगो, जब कपड़े ज़्यादा बनने लगा तो डाई करने के लिए इंडिगो की भी डिमांड ज़्यादा हुई। While the demand increased, but existing supply from West Indies and America collapsed. Collapse means decrease, कम हो गई for a variety of reason. So between 1783 and 1789, the production of indigo in the world fell by the half. डिमांड ज़्यादा हुई और जो उसकी सप्लाई थी 50% कम हो गई। Cloth dyers in Britain now desperately looked for new sources of indigo supply. अब वहाँ के सप्लायर्स ने, वहाँ के मैन्युफैक्चरर्स ने कोशिश की कि इंडिगो को कहीं और से मंगाया जाए। सो एट दैट टाइम ब्रिटेन डिसाइडेड कि टू ग्रो इंडिगो इन इंडिया। फेस विद राइजिंग डिमांड फॉर इंडिगो इन यूरोप, the company in India looked for ways to expand the area under indigo cultivation. इंडिया में इंडिगो का कल्टीवेशन ज़्यादा हो, ये वे आउट निकाला ब्रिटेन ने, और इससे प्रोडक्शन बढ़ा भी। फ्रॉम द लास्ट डिकेड ऑफ द 18th century, indigo cultivation in Bengal expanded rapidly and बंगाल इंडिगो केम टू डोमिनेट द वर्ल्ड। इतना ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगा कि पूरे वर्ल्ड में जो बंगाल से इंडिगो प्रोड्यूस होता था, नील प्रोड्यूस होता था, उसकी सप्लाई बढ़ गई। इन 1788 ओनली अबाउट 30% ऑफ इंडिगो इम्पोर्टेड इनटू ब्रिटेन वाज फ्रॉम इंडिया। 1788 में तो सिर्फ 30% जो इंडिगो था इंडिया से इंपोर्ट होता था, क्योंकि ब्रिटेन ने एफर्ट्स किए, मोटिवेट किया टू ग्रो इंडिगो। बाय 1810 द प्रोपोर्शन हैड गोन अप टू 95%। अब इंडिया से इंपोर्ट इंडिगो का कितना बढ़ गया था? 95%। एज इंडिगो ट्रेड ग्रू, कमर्शियल एजेंट्स एंड ऑफिशियल ऑफ द कंपनी बिगेन इन्वेस्टिंग इन इंडिगो प्रोडक्शन। इंडिगो की डिमांड ज़्यादा थी, कंपनी को ऑफिशियल और कॉमर्शियल जो एजेंट्स थे ऑल इन्वेस्टिंग इन विच प्रोडक्शन? इंडिगो प्रोडक्शन। एंड मैनी लेफ्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी जॉब and started their own business of indigo. So job to look after their indigo, attracted by the protest of high profit numerous Scotsmen English came to India and became planters. Those who had no money to produce indigo could get loan from the कंपनी, और जिसके पास मनी नहीं थी उन्होंने कंपनी से लोन लेकर इंडिगो में इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर दी। तो हाउ वाज इंडिगो कल्टीवेटेड? सो देयर वर टू वेज इंडिगो वाज कल्टीवेटेड। दीज वर निज कल्टीवेशन एंड रोयती कल्टीवेशन। निज मीन्स अपना और रोयती मीन्स फार्मर्स। So within the system of niche cultivation, planter produced indigo in lands that he directly controlled. He either bought the land or rented it from the other zamindars and produced indigo by directly employing hired laborers. व्हाट इज निज कल्टीवेशन? जब इंडिगो जो कल्टीवेटर था खुद अपनी लैंड पर ग्रो करता था, अपनी लैंड नहीं थी तो रेंट पर लैंड लेकर
लेबरर को एम्प्लॉय कर कर हायर लेबर्स की हेल्प से इंडिगो को ग्रो करते थे, उसे कहा जाने लगा निज कल्टीवेशन। जब प्लांटर अपनी लैंड पर या रेंट पर लैंड लेकर हायर लेबरर की हेल्प से इंडिगो को ग्रो करते थे, नील को ग्रो करते थे, उसे कहा गया निज कल्टीवेशन। अब प्रॉब्लम्स क्या थी निज कल्टीवेशन की? इंडिगो कुड बी कल्टीवेटेड ओनली ऑन फर्टाइल लैंड and these were already densely populated. These land was found in which areas? Densely populated areas. So only small plots scattered over the landscape could be acquired. What was the problem with niche cultivation? Planters found it difficult to expand the area under niche cultivation because indigo could be cultivated only on fertile land and these were all already densely populated. हमें निज कल्टीवेशन के लिए लार्ज एरिया चाहिए था और ये एरिया डेंसली पॉपुलेटेड था, और फर्टाइल लैंड चाहिए थी, फर्टाइल लैंड भी अवेलेबल नहीं थी। तो जहाँ पर ये फार्मिंग हो रही थी आसपास कुछ एक ही एरिया था जहाँ पर स्मॉल फार्मर्स थे, उनसे उन्हें प्रेशर से डरा धमकाकर कुछ लैंड उन्होंने परचेज कर ली, और इट लेड टू टेंशन एंड कन्फ्लिक्ट बिटवीन द प्लांटर्स एंड द फार्मर। Second problem with the niche cultivation was nor was labor easy to mobilize. Laborers को collect करना इकट्ठा करना आसान नहीं था। Large plantation required a vast number of hands to operate, and labor was needed precisely at a time when farmers were usually busy with their rice cultivation. जब हमें ज़रूरत थी उस समय फार्मर्स बिजी होते थे राइस कल्टीवेशन में। थर्ड प्रॉब्लम विद निच कल्टीवेशन वाज निच कल्टीवेशन ऑन लार्ज स्केल रिक्वायर्ड मैनी प्लो एंड बुल्क्स। 1 बीघा इंडिगो कल्टीवेशन रिक्वायर्ड 2 बुल्क्स। सो व्हाट इज दी 1 बीघा? ये 1 हेक्टेयर से थोड़ा कम होता है। 1 बीघा के लिए हमें चाहिए थे 1 बुल्क एंड प्लो चाहिए था। अगर 1000 किसी के पास बीघा लैंड है, ही रिक्वायर्ड 2000 प्लोज एंड बुल्क। इन्वेस्टिंग ऑन परचेज एंड मेंटेनेंस ऑफ बुल्क वाज अ बिग प्रॉब्लम। ये भी आसान नहीं था कि इतने सारे प्लो खरीदे जाएं और हल खरीदे जाएं, बुल्क बैलों को खरीदा जाए। नोर कुड सप्लाई बी इजली गोट फ्रॉम the farmers since their plow and bullocks were busy on their rice field. So again exactly at that time the indigo planters needed them. जब उन्हें इंडिगो कल्टीवेशन के लिए बुल्क्स और प्लो की ज़रूरत थी उस समय फार्मर्स के बिजी होते थे किस चीज़ के लिए? राइस कल्टीवेशन के लिए। सो दीज वर दी प्रॉब्लम्स ऑफ द निच कल्टीवेशन। फर्स्ट थिंग, more area was not available. Second, more labor was not available. Third, they need more plow and books which was difficult to manage them. So till the late 19th century planters were therefore reluctant to expand the area under niche cultivation. Less than 25% of land producing indigo was under this system. जो 75% के करीब लैंड थी वो इंडिगो कल्टीवेशन किस ढंग से किया जाता? रोयती के तरीके से। निच कल्टीवेशन में तो सिर्फ लैंड अवेलेबल थी लेस देन 25%. सो आर नेक्स्ट मेथड ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन वाज इंडिगो ऑन द लैंड ऑफ रोयत. रोयत मीन्स फार्मर्स. ये सिस्टम क्या है? अंडर द रोयती सिस्टम प्लांटर्स फोर्स द रोयत टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट an agreement. At times they pressurize the village headman
to sign the contract on behalf of the Rohits. रोहिती सिस्टम क्या था, जिसमें प्लांटर्स रोहित को एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते थे, या कई बार विलेज हेडमैन को, जो गांव का मुखिया होता था, पूरे गांव के फार्मर्स के बिहाफ पर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए कहते थे. Those who signed the contract got cash advances from the planters at low rate of interest to produce indigo, but the loan committed the Rohit to cultivating indigo at least 25% of the area under his होल्डिंग. जो फार्मर्स इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करते थे, उन्हें अपनी लैंड एरिया के 25% एरिया पर इंडिगो को ग्रो करना होता था. द प्लांटर प्रोवाइडेड द सीड ड्रिल वाइल कल्टिवेटर्स prepared the soil, sowed the seed and looked after the crop. जो फार्मर्स होते थे उनकी ड्रिल के अकॉर्डिंगली ही सीड्स को सो करते थे, उसको सुपरवाइज करते थे. व्हेन द क्रॉप वाज डिलीवर्ड टू द प्लांटर आफ्टर द हार्वेस्ट, अ न्यू लोन वाज गिवन टू द रोहित. और जब क्रॉप रेडी हो जाती थी, हार्वेस्ट कर ली जाती थी, तो किसको दी जाती थी? प्लांटर्स को. और व्हाट वाज हैपन एट दैट टाइम? न्यू लोन वाज गिवन टू द रोहित एंड साइकिल स्टार्टेड ऑल ओवर again. So farmers who were initially tempted by the loan soon realized what was happen कि loan given to them at less rate of interest, but the price they would given to them for indigo was very less and they were unable to repay the loan. So what was happen? The price they got for the indigo they produced was very low. And the cycle of loan never ended. There were other problems. The planters usually insisted the indigo be cultivated on the best soil, in which farmers prefer to cultivate rice. Indigo moreover had deep roots and it exhausted the soil rapidly. After an indigo harvest, the land could not be sown with rice. It means that कि प्लांटर्स क्या चाहते थे कि वो इंडिगो को ग्रो करें अपनी बेस्ट सोइल पर. बट व्हाट वाज द प्रॉब्लम? इंडिगो प्लांट्स हैड डीप रूट्स. Also, once this crop was grown on the land become infertile. जब वो एक बार इंडिगो को अपनी फर्टाइल लैंड पर लगा लेते थे तो लैंड कैसी हो जाती थी? इनफर्टाइल. मतलब उसकी क्वालिटी कम हो जाती थी, फर्टिलिटी कम हो जाती थी. और दैट लैंड कैन नॉट बी यूज फॉर ग्रोइंग दी राइस इन फ्यूचर. उस लैंड पर फिर कभी भी राइस को ग्रो करने के लिए वो सूटेबल नहीं रहती थी. सो व्हेन फार्मर्स न्यू दिस फैक्ट, जब उन्हें पता लगा तो उन्हें बहुत बुरा लगा. कि उन्हें एक बार तो अच्छा लगा कि उन्हें जो लोन है कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मिल गया है, पर जब उन्होंने वो क्रॉप्स प्लांटर्स को दी तो इंडिगो की प्राइस उन्होंने उसे बहुत कम दी, जिससे वो अपना लोन भी रिटर्न नहीं कर पाए और दूसरा उनकी लैंड भी इनफर्टाइल हो गई. So it was their bitter experience to grow indigo in their field. क्योंकि they wanted to grow crops on their field not once or twice, they wanted good crops from their field. But when they grow the indigo, it make their land infertile. उनकी लैंड इनफर्टाइल हो जाती थी, जिस पर वो कभी भी राइस दोबारा से नहीं लगा सकते थे. अगर लगाते थे तो उसका प्रोडक्शन बहुत कम होता था. तो ये था स्टूडेंट्स हाउ इंडिगो वाज ग्रोन. तो आज हमने पढ़ा, जो फर्स्ट वर्चुअल क्लास में पढ़ा था, हमने पढ़े थे 3 सेटलमेंट्स. परमानेंट सेटलमेंट की टैक्स वाज फिक्स्ड, और सेकंड माहलवाड़ी, जो टैक्स थे कलेक्ट किए जाते थे, विलेज हेडमैन उसे कलेक्ट करता था. थर्ड वाज रोहितवाड़ी
system in which tax were collected from the farmers directly by the ईस्ट इंडिया कंपनी। पर इसके ड्रॉबैक्स क्या थे कि टैक्सेस वर वेरी हाई एंड फार्मर्स वर अनेबल टू रीपे दी लोन, सो इट एडवर्सली अफेक्ट द लाइफ ऑफ फार्मर्स। आज हमने पढ़ा कि ब्रिटिशर्स को लगा कि सिर्फ विलेज एरिया से हम टैक्सेस ही कलेक्ट नहीं कर सकते, बट we can use the village areas, rural area to grow the crops which required in the Europe. So they grow many crops in India, they motivate Indians to grow different crops। और आज हमने मेनली पढ़ा इंडिगो कल्टीवेशन। इंडिगो कल्टीवेशन कितने तरीके से किया जाता था? 2, 1 इज निज कल्टीवेशन एंड सेकेंड इज रोयती कल्टीवेशन। निज कल्टीवेशन में प्लांटर अपनी लैंड पर इंडिगो को ग्रो करता था या उसे रेंट पर लेकर किसी और से रेंट पर ज़मीन को लेकर ग्रो करता था। बट व्हाट वाज हैपन, लैंड वाज नॉट इजली अवेलेबल, वर्कर्स अवेलेबल नहीं होते थे, क्योंकि जब प्लांटेशन फार्मिंग की जाती है लार्ज नंबर ऑफ लेबर्स आर रिक्वायर्ड, वो भी अवेलेबल नहीं थे। एंड थर्ड प्रॉब्लम वाज बुल्क वाज नॉट, प्लो वाज नॉट इजली अवेलेबल, और उनकी मेंटेनेंस भी इजी नहीं थी। सो दैट्स वाई जो निज कल्टीवेशन में थी इंडिगो फार्मिंग की जाती थी लेस देन 25% पर, और 75% लैंड विच वाज यूज रोयती कल्टीवेशन, जिसमें एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाता था और प्लांटर्स लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर फार्मर्स को लोन दे देते थे, और उन्हें कहा जाता था कि अपने फील्ड पे जो बेस्ट फर्टाइल एरिया उस पर 25% पर वो इंडिगो को ग्रो करेंगे। और कॉन्ट्रैक्ट में कई बार फार्मर्स के साथ होता था और मैनी टाइम्स इट इज़ विद द हेडमैन ऑफ द विलेज, पूरे गांव के बिहाफ पर ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता था। पर जब उन्हें पता चला कि लोन तो लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर देते हैं, पर जब उन्हें हार्वेस्ट दी जाती है तो दे गिव वेरी लेस प्राइसेस ऑफ इंडिगो टू देम। और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जब वो इंडिगो ग्रो कर लेते थे तो उनकी लैंड क्या हो जाती थी? इनफर्टाइल हो जाती थी। सो दे कैन नॉट यूज दैट लैंड फॉर ग्रोइंग दी राइस इन फ्यूचर। तो ये आप सबको क्लियर हो चुका होगा। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस विद यू ब्लू रेबिलियन। ब्लू रेबिलियन इसमें डिस्कस करेंगे कि फार्मर्स को जब पता चला उनके ड्रॉबैक्स ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन का, तो उन्होंने रिवोल्ट कर दिया। इन नेक्स्ट वीडियो, इन नेक्स्ट वर्चुअल क्लास आई विल डिस्कस विद यू इन डिटेल ब्लू रेबिलियन। स्टूडेंट, स्टे एट होम, stay healthy, maintain social distancing, wash your hands again and again, and keep learning. Thank you. Have a nice day.